0.5 liter to 10.5 liter. एक्सटर्नल प्रेशर कितना था? P equal to 280 था. Now, what is the change in internal energy? What is the change in internal energy? Delta U equal to क्या है? The sum of internal energy and pressure volume energy. That means H equal to U plus PV. देखो एक सिस्टम है, ठीक है, मैं एसिड एंड बेस डाल दिया. एक एसिड एंड बेस, हीट एनर्जी रिलीज. क्वेश्चन ये क्या बोल रहे? प्रेशर इज अ कांस्टेंट, ठीक है. देन क्या होगा? जनरली कुछ एनर्जी रिलीज होगा. द एनर्जी इज जनरली राइजिंग द टेम्परेचर. लेकिन तो कंडीशन लिया था मैं कांस्टेंट टेम्परेचर ऑलरेडी आइसोथर्मल में, ठीक है. आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर ऐसे ही रुकना है. जनरली हीट एनर्जी रिलीज है. क्या होगा? जनरली तो हीट एनर्जी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन था टेम्परेचर कांस्टेंट रखो. देन दो चांसेस है, एक तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, दूसरा प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए. तो मैं बोल रहा प्रेशर भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट रखने के बाद क्या बचेगा? तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. चलो अब इतना वॉल्यूम था, V इनिशियल था इधर, V फाइनल इतना तक गया. ओके, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना है. तो दूसरा ऑप्शन क्या बच गया मेरे पास? तो ढक्कन ऊपर गया. चलो अभी क्या है? सिस्टम इज डूइंग सम वर्क. ओके, सो अभी कितना एनर्जी, मतलब वो एनर्जी कितना रिलीज हो गया? इंटरनल एनर्जी कुछ है, एट द सेम टाइम वर्क डन. इंटरनल एनर्जी, सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, टोटल वर्क में कन्वर्ट होगा. सपोज कोई दूसरा केस 2 में टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम इफ अ कंटेनर इज नॉट अ फिक्स्ड और स्टैंडर्ड कंटेनर, then obviously the volume will be increased, just balloon type. Flexible container है तो volume will be increased. So finally conclusion is work will be done. So temperature also थोड़ा raising. Internal energy भी बढ़ रहे, as well work also doing. So अभी इस केस में ये रिएक्शन में how much heat energy change means वो internal energy as well as how much work done. दोनों का sum is equal to एंथैल्पी. एंथैल्पी में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी भी थोड़ा बढ़ता है, एट द सेम टाइम वर्क आल्सो इट विल डूइंग सम वर्क. दोनों का सम. ओके, डाउट है इसमें? सी इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी में एक ही डिफरेंस है, इधर कांस्टेंट प्रेशर होता है, उधर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है. H इक्वल टू QP. उस टाइम में QV था, अभी QP है. कांस्टेंट प्रेशर में व्हाटएवर हीट एनर्जी एक्सचेंज दैट इज नोन एज एंथैल्पी एक्सचेंज. नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U. रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U. A is forming into A is the reactant and B is the products. So chain मतलब क्या है? Reactant में how much enthalpy is there? After reaction, product is forming. Product का enthalpy. Now change means delta H equal to product enthalpy minus reactant enthalpy. Product enthalpy minus reactant enthalpy. So that is the change. Make write like this: A to B one equation. Let HA is the enthalpy of reactant.
HA is the enthalpy of reaction. Then HB is the enthalpy of products. HB is the enthalpy of product. HA, enthalpy of reactants. HB is the enthalpy of products. Then what is H equal? Already we know that U plus PV. Therefore, I can write HA equal U A plus PV. Then HB equal UB plus PV. Product minus. So this volume also it may be changed. 1 mole if it is decomposing, it may be forming 2 moles. Sometimes H2 plus O will be giving H2O like that, combined हो सकता है. So volume also will be changed. Now I am talking about enthalpy change. Delta H equal delta HB means product enthalpy minus reactant enthalpy. Then product enthalpy HB equal to UB plus PVB minus UA plus PVA. Okay. Now I can write here UB minus UA plus P common करके BB minus BA. इसमें किसको भी डाउट है तो product enthalpy minus reactant enthalpy, that is the variation delta H. Then वही substitute किया. Then same terms एक side में लिखा है. Then UB minus UA equal to final minus initial one. That means again delta U. This is equal to delta U plus P delta V. Delta V. What is this? Delta H equal to. This is one equation. And this equation again I can convert into some other form. This delta H equal delta U plus P delta V. P delta V. PV equal to nRT. PV equal to nRT. So delta nRT. Delta PV equal to delta nRT. So delta nRT. Since PV equal to RT. PV equal to RT. Okay. अब ये डेल्टा किसका होगा? तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखे तो ऑब्वियसली डेल्टा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होता है जनरली. Here Ng लिखना पड़ता है. What is N? Delta Ng. Delta N मतलब first of all number of moles difference. Product minus reactant. Okay, I am writing here. Here delta Ng equal to Np minus Nr. Number of moles in the product minus number of moles in the reactant. लेकिन G क्यों लिखा है? G इसलिए लिखा था, it is applicable for only gases. G for gas. क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड 1 मोल रिएक्टेंट में था, प्रोडक्ट में 1 मोल आ गया, वॉल्यूम तो सेम होता है. Suppose 180 gram of water, if it is converting into gaseous form, at STP condition 22.4 liter it is occupied. पहले कितना था? जस्ट हाथ में रख सकते हैं इतने में. बाद में कितना हो गया? 22.4 liters. When our state is changing, gas is volume. Generally, we are considering for only gas molecules. Continue. I think we written here starting HA and HB. Then therefore HA equal to UA plus PVA, HB equal to UB plus PVB. After this line, enthalpy change equal HB minus HA. थ्योरी में लिखना है तो प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी.
that is delta H. Then HB minus HA. HB का वो वैल्यू, HA का ये वैल्यू. इसके बाद सिंपल मैथ्स. Then delta H equal delta U plus P delta V. P delta V को I converted into nRT, delta N RT. उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया मैं NG लिखा. H2 plus I2 is gives rise to HI. Equation number 1. Then equation number 2. PCl5 is converting into PCl3 or decomposing into plus chlorine gas. Then third equation, nitrogen plus 3 moles of hydrogen is gives us to 2NH3. Now, what is the relation between delta U and delta H? तीनों का एक एक साइड में लिख दो. क्या होगा डेल्टा H and डेल्टा U में? See what is the relation actually in delta H equal to delta U plus delta NGRT. ठीक है, Ng मतलब N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट. अभी बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस C, इसमें तो सब तो गैस गैस गैस. So gas. चलो अभी डेल्टा H इक्वल क्या होगा अभी? डेल्टा U तो होगा, ठीक है. डेल्टा Ng क्या है इसमें? डेल्टा Ng मतलब number of products, number of moles in the product minus number of moles in the reactant. Tell me how many number of moles of products in the first equation? How many moles are there in the balancing equation? 2 moles. 2 moles minus in the reactant how many moles are there? 4 कहाँ दिख रहे बेटा? ये 1 mole है, 1 mole है. H2 plus I2. 2 minus 2 0. Total term will be 0. Therefore, delta H equal to delta U. Clear? Whenever number of moles of gas molecules are same in the reactant and product means indirectly at constant volume. There is no change in the volume. In that case, delta H equal to delta H. Okay? क्योंकि वर्क तो कुछ है ही नहीं. वर्क then ठीक है. Delta H. Delta H equal to delta U plus delta Ng. प्रोडक्ट कितना मोल्स है प्रोडक्ट में? 2 moles. रिएक्टेंट में 1 mole. 2 minus 1 1. That means 1 RT. That means RT. ठीक है. अभी डेल्टा H डेल्टा U में which is the greater value? Delta H is greater and delta U is greater. Delta H is greater than delta U. ठीक है. Next, here delta H equal delta U product 2 reactant 4. 2 minus 4 मतलब minus 2 RT. In this case, which is the greater? Delta H is less than delta U. Clear? समझ गया? It is exothermic reaction. It is exothermic reaction. Delta H equal to 53.5 average value. Now, I written here is it correct or wrong? Representation. Exothermic reaction it is. So delta H equal to positive होगा, negative होगा. एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक बोलने मतलब इधर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, ये ध्यान में रखना. नेगेटिव दिया मतलब वो एक्सोथर्मिक है. क्योंकि कल बोल दिया मैं, हम सिस्टम का बात करते हैं.
एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर गया मतलब हमको नुकसान है, सिस्टम को नुकसान है, ठीक है, मतलब वो नेगेटिव है। चलो, नाउ इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में विच इज द हायर वैल्यू? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में विच इज द हायर वैल्यू? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं घर से आने टाइम में मेरे पास एनर्जी ज्यादा है, आफ्टर दिस पीरियड ज्यादा होगा? कब ज्यादा होगा? फर्स्ट। एनर्जी तो खर्च कर रहे हैं ना, एक्सोथर्मिक तो बाहर जा रहे हैं ना एनर्जी, ठीक है, ऑब्वियसली कहाँ ज्यादा होगा? रिएक्टेंट ज्यादा होगा एक्सोथर्मिक में, ठीक है। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट by heating it is giving calcium oxide plus carbon dioxide, endothermic reaction, endothermic। now delta H कैसे होना चाहिए इसमें? positive होना चाहिए। then tell me here delta H reactant and product में which is the more value? product is more value। वो पहले कुछ था, उसके बाद हीट गेनिंग मीन्स तो एनर्जी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट तो ज्यादा है रिएक्टेंट का। एक्सोथर्मिक में कभी भी ऐसा डेल्टा एच नेगेटिव होगा, सो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जा रही है, इसलिए कुछ एनर्जी बाहर जा रहा है। सेम कांसेप्ट इज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर आल्सो, इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी जा रहा है, उस टाइम में एनर्जी रिलीज है, इलेक्ट्रॉन falling down or de-aggregation there, then energy release in the form of light। here also रिएक्टेंट को ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है, मतलब कितना कम है उतना बाहर जा रहा है। तो मैं हीट करना चाहता हूँ अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर को हीट करना, तो क्या चाहिए मेरे को? हीट चाहिए, ठीक है। सो हाउ मच हीट रिक्वायर्ड? तो क्वेश्चन पूछना इजी है, लेकिन उसके लिए तो इनपुट चाहिए, क्या क्या चाहिए? ये करना चाहिए तो क्या चाहिए? क्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए तुमको? ये तो पहले तो कितना मास है वो पता चलना है, मास ऑफ द वाटर 1 किलोग्राम है कि 10 किलोग्राम है, तो ये पता चलना है। उसके बाद 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो ठीक है, मास पता चलना है, एक चीज 1 पॉइंट। देन पहले तुमको इतना पता चलना है, ये पूरा मास कंटेंट को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने के लिए कितना अमाउंट चाहिए वो पता चलना है, ठीक है। सो दैट इज पर 1 डिग्री सेल्सियस हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी कितना है वो चाहिए, दैट इज आई एम टेकिंग C, ठीक है। देन वो भी C की कैसे पता चलेगा? 1 ग्राम का कितना है पता चले तो वो पूरा मास का पता चलेगा, ठीक है। So per 1 degree Celsius heat energy, per 1 degree Celsius how much heat energy required? लेकिन per gram, if you know per gram, then 1 ग्राम को पता चले तो पूरा मास का कैलकुलेट कर सकते, उसके बाद कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो भी कर सकते। See these many required. Now this last one is, this is the specific heat capacity. This is known as specific heat capacity, CS, specific heat capacity। C is total content कितना दिया है उतना मास का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना चाहिए, that is heat capacity। This is the heat capacity, heat capacity। ये क्या था? स्पेसिफिक मतलब ये होता है वो कुछ यूनिट मास जनरली हम ग्राम लेते हैं सीजीएस में, एमके ले तो किलोग्राम लेते, ये तो स्पेसिफिक वाला, एस पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी HC, ठीक है। मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए वो पता चला, उसके बाद मैं 50 भी कर सकते, 500 तक जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए वो भी मैं कैलकुलेट कर सकते आराम से। क्या करना पड़ता है? सिर्फ इनटू डेल्टा टी करना पड़ता है, C, ठीक है, पर 1 डिग्री सेल्सियस।
सो टोटल हीट Q चाहिए तो क्या करना है अभी Q इक्वल टू क्या है C इंटू डेल्टा T, C इंटू डेल्टा T। कंसेप्ट समझ गया? ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स पर 1 ग्राम of substance or unit mass to increase 1 degree Celsius, how much heat energy required? Then heat capacity means given amount, वो given amount कितना है उतना, मे बी किलोग्राम हो सकता है, 10 किलोग्राम हो सकता है, 1 टन भी हो सकता है। गिवन अमाउंट को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने के लिए कितना हीट एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हर सब्सटेंस का अलग अलग है, आयरन के लिए अलग रहता है, वुड के लिए अलग रहता है, एल्यूमिनियम के लिए अलग रहता है हीट कैपेसिटी। इफ यू नो 1 डिग्री सेल्सियस टू इंक्रीज हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, आराम से यू कैन डू 50 इंक्रीज करने के लिए कितना है, 100 इंक्रीज करने के लिए कितना है, 500 इंक्रीज करने के लिए कितना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डेल्टा टी करना पड़ेगा। ठीक है। अभी among these one more is there molar heat capacity, molar heat capacity। कभी कभी क्वेश्चन में देते कि तो मास में दिया है 10 किलोग्राम ऑफ वाटर, लेकिन कभी 10 मोल्स ऑफ वाटर पूछा, 10 मोल्स ऑफ वाटर और 10 मोल्स ऑफ गैस कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। इन दैट केस यू हैव टू नो मोलार मास। so molar mass also specific से कर सकते हैं, specific is CS into मॉलिक्यूलर मास करें तो यू विल गेट मोलार मास। सो इसका दूसरा नाम है CM, हीट कैपेसिटी। C द हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, M फॉर मोलार। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ये 1 ग्राम वाला पता है तो पूरा कर सकते हैं, मोलार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक तो पता चल रहा है। चलो टुमारो अगेन आई विल रिपीट दिस।